Yeah, now. So, Lara, how was your experience with Kaun Banegi Shikhavarti? Well, the experience shooting it was absolutely fun and fabulous. But ever since it's come out, the experience of receiving the feedback and the awesome response that we've had from the audience that's watched it has been really heartening. So it's been really well worth all the effort, and we're very, very excited with the feedback. I see, I see. And working like stalwarts like Nasiruddin Shah and Raghbir Yadav. How was? Yes, of course. I mean, I think for any actor, it's a dream to share the screen space with Nasir Saab and with Raghuveer ji. And they're such incredible veteran actors that you get to learn so much from them on set. So it's just observing them. There are a lot of times when, at least for me, I used to forget my lines because I was so busy watching them, perform and act. But they're incredible people, incredible actors, but also just wonderful, wonderful people to be around. Super helpful, always providing suggestions to better a scene, better your performance. But also just really real, wonderful, genuine, warm people to work with. Oh, I see, I see. Any nervous moments when you always nervous moments when working with Nasir Saab. I mean, of course, Raghuveer ji is, his whole temperament when he comes onto scene, onto a set is just very calming. He's just, very subtle. So when you're around him, you feel, very comfortable. You almost feel like a friend, like a father figure, like, he's going to look after you. Nasir Saab has a totally different energy. He's more commanding on set. You know that he's more set in his ways of the way that he expects things. So I'm always more nervous around Nasir Saab, but I have to say that nervous has completely gone away after having the opportunity of working with him, because of the kind of person that he is, because of the amount of inputs that he gives you. And I think today he's a friend to all of us. We WhatsApp him, he WhatsApps us back, we love to be able to meet up with him off set. And I think he likes that. He likes the energy that young people bring to his life as well. So it's been really good. And what is your personal opinion? Basically, you are a glamorous. Your image is very glamorous, and in Shikhavarti, I saw you in like a chiffon sari, pallu over the head. So. Yeah, I'm an actor, for me, it's getting under the skin of different characters that I play. I was able to play Mrs. Indira Gandhi in Bell Bottom. I was able to play, Soumya Shukla in 100 for my on-screen debut, which was a hard-hitting cop character. I'm able to play Devyani on screen. I think that's the joy that my work brings me, and, the gift of being able to be as versatile as I can as an actor. Lara, any challenging moments, any tough time while shooting? It was, I think, the entire environment that we shot in, when we were shooting this in September and October of 2020. And at that time, COVID was still, at its peak. It was very, very prevalent. There were very few industry films and projects that were on the floors. So we had to shoot in an extremely tight bubble. And it was challenging. We couldn't have our family members visiting us. We were for 2.5 months in Mandava in Rajasthan, where we shot the entire series. And, we literally had to completely alienate ourselves from the rest of the world in order to be able to shoot this. So you will see a lot of the behind the scenes footage of the series. We're all wearing masks at all times. The protocols were very strict. It was also very hot. It was 43 degrees Celsius when we were shooting in Mandava in Rajasthan. So a lot of the games that you see, a lot of the tasks that the sisters are performing, especially the horse riding and the plowing and the water with the matkas, it was 44, 45 degrees on those days. So extremely hot weather to shoot in. But this is part and parcel of every project that you do. And, finally it becomes part of the experience. लारा, मैंने अभी इसका कुछ एपिसोड्स देखे थे, तो इतने बड़े बड़े सेट्स, रॉयल एक पूरा घराना, जो राजमहल का एक जो फील उसमें था, तो इट वाज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस शूटिंग? नहीं, मैं ये नहीं कह सकती हूँ. मैंने गुरिंदर चड्ढा के लिए बीचम हाउस किया था, जो हमने जयपुर में शूट किया था, और वहां पे भी हमने बहुत बड़े बड़े पैलेसेस में शूट किए थे.
तो इस बार ऑफ कोर्स, लेकिन आई थिंक ये जो ऑथेंटिसिटी है जो दिख रहा है हमारे सीरियल में, ये इसीलिए ही है क्योंकि हमने मंडावा पैलेस में शूट किया था, जो आई थिंक शिखरवती से बहुत मिलता जुलता है, शिखावत से बहुत मिलता जुलता है। तो वहीं पे हमने इस सॉर्ट ऑफ इल्यूजन को क्रिएट किया था, एक ऐसे वर्ल्ड को क्रिएट किया था। एंड ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि द एनवायरनमेंट एड्स अ लॉट टू द फील, एंड आई डोंट थिंक कि हम वो सेम चीज replicate कर सकते थे if we had to just shoot on a set. It makes you feel when you're shooting in Rajasthan. वो एक अलग खुशबू ही है, मिट्टी की खुशबू अलग है, एक अलग सा लिवाज है, सारा कुछ बदल जाता है. This all adds to the character. आपको फील नहीं होता कभी कभी ऐसा कि काश इतना बड़ा कैनवस बड़े पर्दे पर होता तो कितना मजा आता? नहीं, आई थिंक ये अब निकल गया है, बिकॉज आई थिंक लोगों अभी ज्यादातर से इन 2 सालों में जितने लॉकडाउन्स हुए हैं, जितने लोग घर पे बैठे हुए हैं, अभी एक आदत सी पड़ गई है कि आप बड़े के बड़े से पिक्चर, या तो हॉलीवुड हो या बॉलीवुड हो, आप उन्हें अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं. और आई थिंक ये एक अच्छी बात है कि ओटीटी में भी एक ऐसा वक्त आया है जहाँ पे हर सीरियल, ये जरूरी नहीं है कि सीरियल की तरह ही दिखे. और आई थिंक कौन बनेगी शिखरवती की ये खासियत है कि वो दिखती है जैसे एक बड़े फिल्म, बड़े पर्दे की पिक्चर है, उतना उसका स्केल भी उतना ही बड़ा है. तो आई थिंक दिस गोज, ये क्रेडिट मेकर्स को जाना चाहिए कि उन्होंने ऐसा छोटा नहीं सोचा कि हम लोग ओटीटी के लिए बना रहे हैं तो छोटा सोचेंगे, उन्होंने सोचा ही बड़ा है. इसलिए शो भी बहुत ही वाइब्रेंट है, बहुत ही बड़ी सेटिंग है, सेट्स की माउंटिंग बहुत बड़ी है, कास्ट भी काफी बड़ी नामों के साथ है, सो या मेक्स इट लार्जर देन लाइफ. अच्छा, आपने जो आपकी जो तीनों बहनें हैं उनके साथ आपकी कैसी ट्यूनिंग रही सेट पे? वेल, आन्या है मेरे साथ मेरी एक बहन है इस इंटरव्यू पे जो राजकुमारी उमा का रोल प्ले कर रही है, तो ये आपको उमा बताएगी कि कैसा रहा. नहीं, आपको कैसा लगा अपने को स्टार्स के साथ, इनके साथ काम करते हुए कैसा जी फील हुआ? बिल्कुल. वेल, मैं पहली बार सोहाली खान और कृतिका कामरा और आन्या सिंह के साथ काम कर रही हूँ. तो फिलहाल तो मुझे, जब तक मैं सेट तक पहुंची नहीं तो मुझे पता नहीं था कि मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ. हर एक्टर के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग टेक्निक्स होते हैं, मेथड्स होते हैं. लेकिन आई थिंक हमारे लिए ये हमारी खुशनसीबी थी कि एक्चुअली हम लोग इतने टाइट बबल में थे, क्योंकि एक दूसरे के अलावा हमारे पास और कोई था नहीं जिसके साथ हम लोग जुड़े या बातें करें या कुछ. तो ये एक ऐसा माहौल बन गया कि हम लोग सचमुच में एक दूसरे से जुड़ गए. और मुझे ऐसे लगता है कि इस शो के बाद मुझे कुछ ऐसे अनोखे दोस्त मिले हैं जो मेरे साथ बहुत बहुत सालों तक रहेंगे. एंड आई होप कि अगर इस सीरियल की सेकंड सीजन भी होगी, आई नो कि इससे और खुश कोई कास्ट नहीं रहेगा जो वापस जाना चाहेंगे कहीं पे, जहां पे भी हम लोग शूट करेंगे सेकंड सीजन को. इतने खुश वाले कास्ट आपको कहीं दिखाई नहीं देंगे. आई एम प्रीटी श्योर ऑफ दैट. तो मतलब इस कॉमेडी में आप लोगों के बीच पे बड़ा खुशनुमा माहौल रहा, बिल्कुल. और उसके अलावा कुछ आप कुछ बोलना चाहें इस कौन बनेगी शिखावती के बारे में? जी बिल्कुल नहीं, मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि जितने लोग ने ऑलरेडी इस शो को देखा है और हमें इतनी सारी फीडबैक मिली है, उसके लिए हम लोग बहुत बहुत मतलब आप सबसे धन्यवाद कहना चाहते हैं कि एक तो आपने अपना वक्त दिया इस शो को देखने के लिए, दूसरी बात कि हमें इतना अच्छा फीडबैक मिला है. और जिन्होंने नहीं देखा है शो, मैं उनको जरूर बोलूंगी कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपने इस हफ्ते में आप कुछ इजी देखें, जो इजी वॉचिंग अपने पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं, हंसी मजाक कर सकते हैं उनके साथ. अगर आपके सिबलिंग्स है उनसे थोड़ा सा मतलब तानातूनी भी कर सकते हो, लेकिन फिर से मिल भी जा सकते हो. ये सब चीजें हैं शो में, और लोग जरूर जाकर देखिए, अपने फैमिली के साथ में जरूर एंजॉय कीजिए. मुझे आपका वो सीन अभी भी याद है जब आपको पार्टी में कहते हैं कि एक क्लाइंट का मतलब आपको पता है ये क्लाइंट कौन होते हैं? बिल्कुल. थैंक यू लारा, थैंक यू वेरी मच. अब आन्या थैंक से यू. थोड़ा बात करते हैं. जी. आन्या से, आन्या, जी जी राजीव, वेलकम साउथ एशिया टाइम्स मेलबर्न. तो कैसा रहा आपको? थोड़ा सा अपने बारे में बताइए आप. अपने बारे में? जी हाँ, आपने 2017 में एक फिल्म की थी, उसके बाद ये मेरे ख्याल से कौन बनेगी शेखावती में आप नजर आ रही हैं. थोड़ी करेक्शन है वहां पे. जी 2017 में मैंने एक फिल्म की थी कैदी बैंड, जी जी. वो चली नहीं. लेकिन उसके बाद मेरा पहला
OTT शो जी के साथ ही था, जिसका नाम था नेवर किस योर बेस्ट फ्रेंड। और उसके बाद मुझे कौन बनेगी शेखावती मिली, जो मिली नहीं थी मुझे एक्चुअली। मैं गौरव जो हमारे डायरेक्टर हैं उनसे मिली थी, और उन्होंने मुझे इस वर्ल्ड के बारे में बताया, इस दुनिया के बारे में बताया, और मैंने पूछा कि मैं उमा के लिए ऑडिशन दे सकती हूँ, तो उन्होंने बोला नहीं, क्योंकि उमा तो ऑलरेडी है हमारे पास, 3 दूसरी जो बहनें हैं वो नहीं है, तो आप कामनी के लिए ऑडिशन दे दो। और मैं और सोशल मीडिया बिल्कुल मतलब बहुत ही अलग है, मुझे सोशल मीडिया के बारे में कुछ नहीं मालूम, तो मैंने दिया ऑडिशन, मुझे नहीं मिला, और मैंने नेवर किस की शूटिंग कर ली। फिर अगले साल मुझे कॉल आया कि वो जो कैरेक्टर था उमा, आप करना चाहोगे अब? और मतलब आई वाज इन दिल्ली एंड आई रिमेम्बर आई टुक द फर्स्ट फ्लाइट आउट टू बॉम्बे टू मीट द प्रोड्यूसर्स, एंड आई सेड ऑफ कोर्स, क्योंकि मुझे यही कैरेक्टर करना था। तो मैं बहुत लकी थी कि मुझे उमा मिल गई, और मेरे लिए तो मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ही ज्यादा अच्छा। तो आपका जो रोल मैंने देखा वो मतलब बिल्कुल, आपको क्या लगा कि आप उसमें फिट बैठती हैं कि एक नर्वस लड़की जो एलर्जी जिसको बार बार परेशान करती है, कॉन्फिडेंस उसका, वो फिर भी अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखती है, कोई सिंपैथी जताए तो उसको पसंद नहीं है, तो उस रोल में आपने अपने आप को कैसा कंफर्टेबल फील किया? बिल्कुल नहीं, और मुझे लगता है क्योंकि वो मेरे लिए इतना बड़ा चैलेंज था, क्योंकि आन्या और उमा की पर्सनालिटी बहुत ही अलग है। जो 2 सिमिलैरिटीज जो आपने बोला है उससे मैं लूंगी, एक अगर कोई मुझे सिंपैथी दे तो मुझे अच्छा नहीं लगता, और दूसरी बात ये है कि मुझे भी एलर्जीज होती हैं, तो मुझे बहुत बुरा लगा कि उसको आई रिलेटेड विद द होल एलर्जी एस्पेक्ट ऑफ इट, लेकिन जो चैलेंज था उसमें ही मजा है, सो इसलिए मुझे उमा का रोल करना था। और आन्या, ये बताओ कि नसीर साहब के साथ काम करने का कैसा तजुर्बा रहा आपका? जी, मुझे तो यकीन नहीं होता कि मैंने ऐसे कास्ट के साथ काम किया है, क्योंकि सचमुच में मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ। जब मैं बड़ी हो रही थी ना, नसीर साहब, लारा, सोहा, साइरस, मैंने सबको बहुत देखा है और बहुत एडमायर किया है, स्पेशली लारा, नसीर सर, लारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल है, और एज अ गर्ल मैं गर्ल्स स्कूल गई थी, तो हम सब इसको देख के ना हमें वो जोश आता था, तो उनके साथ काम करना बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था, क्योंकि हम अपने मन में कुछ सोचते हैं और जब हम मिलते हैं तो बिल्कुल हमारी तरह ही होते हैं, तो बहुत अजीब लगता है कि अरे ये तो बहुत नॉर्मल लोग हैं। नसीर साहब के साथ भी सेम चीज हुई, वो बिल्कुल हमारे फादर फिगर के जैसे बन गए थे, ही बातें करते थे, उनको अच्छा लगता था शूट के बाद हमारे साथ बैठना, खाना खाना, मैसेज करते थे कहाँ हो आप सब। उनसे इतना कुछ सीखने को मिला मुझे, क्योंकि I've never worked with such people before, तो उनको देखना, उनके साथ बातें करना, मुझे सीन में उनपे चिल्लाना था, हिम्मत नहीं थी मेरे में, लेकिन मैं चिल्लाई और उसके बाद सब ठीक हो गया मुझे लगता है। तो मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा खुश नसीब समझती हूँ कि मुझे इन सब के साथ काम करने को मिला और बहुत कुछ सीखने को मिला। उससे ज्यादा ये अब मेरे दोस्त हैं, मेरे वेल विशर्स हैं, मैं उनसे बात करती हूँ, इनकी एडवाइस लेती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा आन्या, एक बात बताओ, शूटिंग में कोई ना कोई एक ऐसा पर्टिकुलर सीन जरूर रहा होगा जहाँ तुमको लगा होगा यार ये तो बहुत मुश्किल हो गया? नसीर सर के साथ जो मेरा सीन था, और वो मेरे दूसरे दिन पे था, और मैं इतनी घबराई हुई थी कि मैंने पहले भी बोला है, आई हैड टू मेडिटेट, मुझे मेडिटेशन करनी थी अपने आप को थोड़ा सा काम डाउन करने के लिए, क्योंकि मैं रूम से निकलना नहीं चाहती थी। सोचा पता नहीं क्या सोचेंगे, मैं फंबल कर दूंगी, लाइंस भूल जाऊंगी, आप इतने इतने इनएक्सपीरियंस्ड हो कि आपको लगता है कि सबको वैसे भी पता है कि मैं सबसे छोटी हूँ, फिर मैं परफॉर्म भी नहीं कर पाऊंगी, तो फिर क्या सोचेंगे। लेकिन उन्होंने मेरे से बात की, और उसी सीन में मुझे उनपे चिल्लाना था, जो उनका आइडिया था, मैं नहीं चिल्लाना चाहती थी, उन्होंने बोला चिल्लाओ मुझ पे, और उसके बाद हम दोनों बैठ के हंस रहे थे इस बात पे, तो बहुत अच्छा लगा। तो आपकी जिस जनरेशन को आप लीड कर रही हैं इस सीरीज के अंदर,
आपको क्या लगता है कि वो क्या मैसेज जाएगा सोसाइटी में? आपको कैसा फीडबैक की उम्मीद है और अभी कैसा मिल रहा है आपको फीडबैक? जी, पहले दिन तो बहुत ही मिक्स्ड रिव्यूज आए थे जो क्रिटिक्स बोल रहे थे। कई को पसंद आया, कई को समझ नहीं आया, लेकिन जैसे लारा ने भी अभी कहा था कि हमारी ऑडियंस सबसे इम्पोर्टेंट है, और अगर उन्हें पसंद आया है, दैट्स द एंड ऑफ इट। और जो भी मैसेजेस मुझे इंस्टाग्राम के डीएम्स पे मिल रहे हैं, या हम सब एक दूसरे को बोलते रहते हैं किसने क्या बोला है, बहुत हार्ट वार्मिंग है, क्योंकि ये एक हार्ट वार्मिंग शो है। फैमिली के बारे में, डिसफंक्शनल फैमिली के बारे में। हम सबकी फैमिली थोड़ी ना थोड़ी डिसफंक्शनल तो है ही। तो और बहनों के बारे में, और हर कैरेक्टर अपने खुद में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो बहुत अच्छे से लिखा हुआ है ये शो, मुझे लगता है, जो अनन्या ने लिखा है। एंड इट्स अ वुमेन सेंट्रिक शो, तो for me that's very appealing, you know, in today's generation, to have 4 women who are carrying a show, even though you have a Naseer sir and a Raghuveer sir by us to help us, but it is a woman centric show. और अपनी जो को स्टार लारा है, हाँ जी। सोहा है, कृतिका, उनके साथ आपका कैसा ट्यूनिंग रही सेट पे? तो जाने से पहले मैंने सोचा कि हमेशा आप सुनते हो कि अगर लड़कियां होती है तो कुछ ना कुछ, या तो आपके बारे में कुछ बोलेंगी, या कुछ कुछ तो ऐसे गॉसिप होगा। लेकिन मैं आपको ऐसे कुछ गॉसिप नहीं दे सकती, क्योंकि सब बहुत ही अच्छे थे। और आई थिंक जो हमारे लिए सबसे अच्छी बात थी कि हम सबकी जो एज ग्रुप है ना, देयर वाज अ एज डिफरेंस। तो लारा was like an older sister, वो बड़ी बहन जैसी ही थी। और मैं आपको ये भी बात बताऊंगी कि हम सब एक दूसरे की टांग खींचते थे, लेकिन लारा के साथ ना मेरी हिम्मत नहीं होती थी टू क्रॉस अ बाउंड्री, क्योंकि सबसे बड़ी लारा है। तो मैं तो लारा बोल भी नहीं पाती थी, मैं सिर्फ लारा लप्पा या लारा मैम बोलती थी, क्योंकि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है ना, ऐसी है दैट शी कमांड्स दैट रिस्पेक्ट, तो आ जाती है आपसे। फिर सोहा थी, जो सोहा और मेरी पर्सनालिटी थोड़ी सी सिमिलर है। हम दोनों थोड़े से मतलब पुश ओवर टाइप के लोग हैं, तो उनके साथ भी बहुत अच्छा लगा। वो खाना नहीं शेयर करती थी किसी के साथ। कृतिका सबसे छोट, आई मीन मेरे एज में शी इज द क्लोजेस्ट टू मी, तो मैं उनके साथ कुछ भी बोल सकती थी, कुछ भी कर सकती थी, कुछ भी मतलब ऐसे ही बैठ जाऊंगी। तो सबके साथ बहुत बहन वाला रिलेशनशिप एक्चुअली था। बट आप देख सकते थे कि हर बहन के साथ बहुत ही अलग रिलेशनशिप है, और आज भी वैसी है। आई विल नेवर क्रॉस दैट बाउंड्री विद लारा, आई कांट। अच्छा, अनिया, मैं आपसे भी और लारा से एक सवाल करना चाहूंगा। रघुवीर यादव जो हैं वो बहुत टैलेंटेड, बहुत कमाल के कलाकार हैं। उनके साथ कैसी आप दोनों की वो रही ट्यूनिंग? मैं पहले लारा, अगर लारा बोलना चाहें, क्योंकि रघुवीर यादव अपने आप में एक बहुत, नसीर साहब भी हैं, रघुवीर यादव भी हैं, तो रघुवीर यादव की एक अलग पर्सनैलिटी है। लारा, थोड़ा प्लीज बताइए ना, रघुवीर के साथ आपका कैसा रहा? जी जरूर राजीव जी। एक तो मैं बता दूं कि हमारी शुरुआत, दिन की शुरुआत बहुत बहुत सुबह सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ता था हमें, क्योंकि वहां पे जैसे मैंने कहा बहुत गर्मी थी। तो हम लोग ज्यादातर से सेट पे पहुंचते थे 4:45 शुरू करने के लिए। तो यानी कि मतलब हमें उठना पड़ता था 4:45, 5 बजे ऐसे। और 5 बजे जब हम लोग उठते थे तो हमें बांसुरी की आवाज सुनाई देती थी, और ये बांसुरी रघुवीर जी बजाया करते थे 5 बजे सुबह में अपने छत पे, अपने कमरे में। और ना ही वो बांसुरी बजाते थे, वो बांसुरी बनाते थे भी। तो अपने खुद की हाथ की बांसुरी बना के बजाते थे। और उन्होंने नसीर साहब को भी सिखाया था सेट पे बांसुरी बजाना। तो ये उन दोनों की एक जब डाउन टाइम था या शॉट के बीच में, तो दोनों बैठ जाते थे और नसीर साहब बोलते, अच्छा ठीक है अभी मुझे ये बताओ, अच्छा ये पकड़ाओ, अभी ये सुर बताओ। तो इन दोनों में ये ऐसी पूरी दिन ये चलती रहती थी। और रघुवीर जी, ज्यादातर से मैंने अपने करियर में बहुत सारा कॉमेडी जॉनर के फिल्म्स किए हैं। नो एंट्री से लेके हाउसफुल, भागम भाग, पार्टनर, आई मीन सिंग इज बिंग, जो भी ले लो, सारे इतने सारे कॉमेडी फिल्म्स किए हैं। मुझे लगता है कि रघुवीर जी कॉमेडी में माहिर है, और उनकी कॉमेडी एफर्टलेस होती है, उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है।
आपको हंसाने के लिए आप उनको कोई एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल एफर्टलेस होती है उनकी परफॉर्मेंस। तो मेरे लिए एज अ कॉमिक एक्टर, मेरे लिए ये ऑब्जर्व करना एक बहुत ही बड़ी बात थी। आई यूज टू लव कि उनको मैं चुपचाप से कॉर्नर में बैठ के ऑब्जर्व करूं, और उनकी कॉमिक टाइमिंग, जिस तरीके से वो अपने डायलॉग्स बोलते हैं, बिल्कुल एफर्टलेस। और जैसे मैंने कहा, उनकी पर्सनालिटी नसीर सर के पर्सनालिटी से बिल्कुल अलग है। वो बहुत ही शांत है, बहुत ही एकदम चुपचाप आते हैं, अपना काम करते हैं, एकदम एक बहुत कंफर्टिंग, बहुत ही वार्म जेन्युइन एक माहौल रहता है उनके साथ में। नसीर सर भी जेन्युइन है ऑफ कोर्स, लेकिन उनकी पूरी एनर्जी अलग है। रघुवीर जी की एनर्जी ही पूरी काम वाली एनर्जी है। एकदम से आपको लगता है कि हाँ, अब इस सीन में रघुवीर जी है, वो सारा कुछ संभाल लेंगे, ये सीन बहुत ही अच्छा जाएगा। ऐसे कोई हैरान होने की, कोई एंग्शियस होने की, ऐसी स्ट्रेस होने की कोई बात नहीं है। अब ये सारा अच्छा से, मतलब पूरा वो अपने आप में ही इस सीन को ले जाएंगे। तो ये था रघुवीर जी के साथ काम करना। अच्छा लारा, एक मैं एक्सपीरियंस। पर्सनल सवाल आपसे कहूंगा। आपकी जो पर्सनैलिटी है, आप अंग्रेजी बहुत अच्छा बोलती हैं, जी और नसीर साहब या फिर रघुवीर यादव जो कि स्टेज भी करते हैं, और जो कि जी एक्सेंट यानी उच्चारण उर्दू का हो चाहे हिंदी का हो, तो जी। आप लोगों को थोड़ा नर्वस तो ये फील होता होगा कि यार ये शब्द ऐसे नहीं बोलना था, ऐसे बोलना था, या ये कहीं टोक ना दें, ऐसा मतलब क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि दो बिल्कुल तीन लैंग्वेजेस पे कमांड होना। तो जी। इसमें शूटिंग के दौरान थोड़ा बहुत ये तो आप फील करते होंगे कि यार इतने बड़े बड़े कलाकार हैं, कुछ गलती ना हो जाए हमसे। बिल्कुल, लेकिन देखिए, मुझे 18 साल हो गए इंडस्ट्री में, और मैं अब एक ऐसे मकाम पे पहुंच गई हूँ कि जहाँ पे मैं नर्वस नहीं फील होती हूँ। मैं एक्चुअली उत्सुक होती हूँ कि ऐसे लोग के साथ काम करने का मौका मिले, ताकि वो मुझे करेक्ट कर पाए, मैं उनसे सीख पाऊँ। तो जब भी मुझे मौका मिलता है जावेद साहब के साथ काम करने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं जितनी गलतियां बना सकती हूँ मैं बना लेती हूँ उनके सामने, क्योंकि मुझे पता है कि वो मुझे करेक्ट करेंगे, वो मुझे सिखाएंगे कि कैसा किया जाता है, कैसा बोला जाता है। तो ये सेम चीज है नसीर साहब के साथ और रघुवीर जी के साथ भी। मुझे डर नहीं लगता कि मैं कुछ गलत बोलूं। मैं चाहती हूँ कि जितने सारे मेरे डाउट है वो सब निकल जाए, ताकि इन जैसे लोग जो एकदम, मतलब जैसे आपने बोला, एकदम इतने एक्सपर्ट है, इतने माहिर है इन चीजों में, वो मुझे सिखा पाए। तो आई थिंक मैं अब उस लेवल या उस मकसद पे पहुंच गई हूँ, जहाँ पे मैं नर्वस नहीं हूँ, लेकिन सीखना जरूर चाहती हूँ। और आने यहाँ यही बात मैं तुमसे भी पूछना चाहूंगा कि क्या तुम्हारी जो उम्र है, जो तुम जिस उसमें हो, तो ये एक कलाकार के लिए एक बहुत चैलेंजिंग वो रहता है कि जब वो इतने सीनियर लोगों के साथ काम करता है, तो उसको लगता है भाई पूरी तैयार होके जाना है, पूरे डायलॉग डिलीवरी जो है वो बिल्कुल एकदम 10 में से 10 होनी चाहिए। मन में ऐसा लगता है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन मैं ये भी सोचती हूँ कि मैं ना एक्टिंग स्कूल गई थी, ना मुझे एक्टिंग के बारे में कुछ पता था जब मैंने शुरू किया। तो जो भी मैं सीखती हूँ मैं एक्चुअली सेट पे ही सीखती हूँ, और अगर गलतियां नहीं करूंगी तो मुझे सीखने को नहीं मिलेगा। और मेरे जो सारे को एक्टर्स थे, नसीर साहब से लेके जो हमारे बच्चे थे, एक्शन रिएक्शन का होता है ना, तो उन्होंने मुझे इतना कंफर्टेबल बना दिया था सच में। और एक हफ्ता हमने शूट के पहले साथ में बिताया था ताकि हम कंफर्टेबल हो जाए और हम क्वारंटीन भी करें। तो माहौल ऐसा बन गया था कि मुझे नर्वसनेस थी नहीं थी कि मुझे 100% देना है, या इफ आई मेक अ मिस्टेक, अगर मैं गलती कर दूं तो क्या सोचेंगे। सोचेंगे लेकिन मुझे बताएंगे कि आन्या ऐसे नहीं, व्हाई डोंट यू ट्राई दिस। जैसे एक टाइम था कि मैं फ्रेम में नहीं फिट आ रही थी, और मुझे याद है कि लारा ने मुझे बोला था कि ट्राई एंड फाइंड द कैमरा, स्टैंड दिस वे, मे बी देन यू विल कम। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपको एक्सपीरियंस से मिलती है ना, एक इनएक्सपीरियंस्ड एक्टर को, मतलब अगर ये ज्ञान मिले फ्री में, then why not? I don't have to go to an acting school then. I have this in front of me, and what an institution for me. तो गलती से ही आपको पता चलता है। तो मैं नर्वस नहीं थी इसके बारे में बिल्कुल। दूसरे दिन के बाद, उसके पहले मैं थी, दूसरे दिन के बाद में नहीं थी। और अब चलते चलते आपसे भी पूछूंगा और लारा से भी पूछूंगा कि कौन बनेगी शिखरपति, इसकी क्या खूबियां आपको लगती हैं कि भाई ये कामयाब होगा, तो क्यों होगा, ये बताइए। आई थिंक मुझे कॉमेडी है? लगती है हाँ जी, हाँ कॉमेडी जी है, लारा बोलिए। हाँ
कॉमेडी है, इसमें ह्यूमर भी है, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें जो चीज है वो बहुत ही हार्ट वार्मिंग है। ये एक स्टोरी है, एक किस्सा है एक पूरी फैमिली की। और मैं चाहूंगी कि ज्यादातर से लोगों ने जितना कुछ सहा है, देखा है, महसूस किया है इस 1.5-2 सालों में, एज इट इज लोग बहुत ही परेशान रहे हैं, काफी स्ट्रेस्ड आउट रहे हैं। तो एक अच्छी, एक लाइट हार्टेड, एक अच्छी कोकी फन कॉमेडी है, जिसमें फाइनली इसका जो बॉटम लाइन है वो यही है कि फैमिली से बढ़कर, घर से बढ़कर और कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, सबसे बड़ी प्रायोरिटी वही रहती है। तो आई थिंक दैट्स द मेन मैसेज टू टेक अवे। थैंक यू लारा, थैंक यू। और आन्या, आप क्या कहेंगी, क्यों देखें भाई इसको हम, कौन बनेगी शिखरवती? जैसे लारा लप्पा ने बहुत अच्छे से कहा है, और जो हमें सीख मिली है इस 2 सालों में, वो यही है कि फैमिली सबसे इम्पोर्टेंट चीज है और ज्यादा चीजें चाहिए ही नहीं। फैमिली इज इनफ टू कीप यू क्वाइट हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। और ये कॉन्सेप्ट मुझे नहीं लगता आपने कहीं देखा होगा, स्पेशली हमारे इंडियन प्लेटफॉर्म्स पे। तो मजा आएगा, फैमिली के साथ देख सकते हैं। बहुत टाइम बाद वायलेंस नहीं है, डार्क नहीं है, अच्छा लगेगा आपको। या तो राउंड्स आप एंजॉय करोगे, या विजुअली आप एंजॉय करोगे, या बहनों का जो बैंटर है या जो कितने मीन है एक दूसरे के साथ वो एंजॉय करोगे। कुछ तो आपको डेफिनेटली पसंद आएगा शो के बारे में। और इट्स जस्ट अ लाइट वॉच, और हमें बहुत मजा आया, तो आपको भी आना चाहिए, एंड दैट्स ऑल वी होप। तो ठीक है, साउथ एशिया टाइम्स मेलबर्न की तरफ से हमारी शुभकामनाएं हैं आपकी सीरीज के लिए, कौन बनेगी शिखरवती। थैंक यू वेरी मच, आप दोनों ने हमें टाइम दिया। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक थैंक यू यू राजीव जी।